कार्रवाई की गई है और 11 दिसंबर तक अब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज सदन में पेश की गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। 11 दिसंबर तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। तो महुआ मोइत्रा, जिनकी संसद से सदस्यता को रद्द कर दिया गया है कैश फॉर क्वेरी मामले में, आज सदन में एक रिपोर्ट पेश हुई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके आधार पर यह कार्यवाही की गई। चलिए बयान भी सुनवाते हैं। Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manobikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end.
जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Thank you. आक्रामक अंदाज में नजर आई और इसी पर चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे न्यूज है शरद द्विवेदी जी. शरद जी, आक्रामक अंदाज रहा, अगले 30 सालों तक ये लड़ाई जारी रहेगी और इसके साथ ही आज लोकसभा में कार्यवाही के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा है. शरद जी देखिए, बिल्कुल, और काफी फायरी नजर आई हैं महुआ मोइत्रा. उन्होंने इथिक्स कमेटी जो लोकसभा की है, कैश फॉर क्वेरी, ये एक मामला है और कथित रूप से उन पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछने के लिए, जो कॉर्पोरेट्स को लेकर बात उठती है कि उनसे जुड़े विषय को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है, कैश फॉर क्वेरी, और ये आरोप उन पर लगा था. और इसमें ये कहा गया है कि ममता मोइत्रा ने अपने संसदीय लॉगिन और पासवर्ड एक गैर अधिकृत जो व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन, जिनका नाम दर्शन हीरा नंदानी बताया जा रहा है, उनके साथ उन्होंने इसको शेयर किया, अपना संसदीय लॉगिन और पासवर्ड, और उसके बदले में आरोप ये है कि पैसे और गिफ्ट लिए. और ये मामला जब एथिक्स कमेटी के दौरान गया, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इसकी रिपोर्ट आनी थी. कमेटी की जो नैतिक मामलों की कमेटी होती है, जिसको हम इथिक्स रिपोर्ट कहते हैं, और 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा इथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी. तो उन्होंने बैठक के बाद कमेटी पर अनैतिक और निजी सवाल पूछने का आरोप लगाया था, जिसकी उस समय बड़ी चर्चा रही थी. 2 नवंबर की ये बात है, 2023 की. कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर ने महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरा नंदानी के संबंधों को लेकर सवाल किए थे, जिनको लेकर काफी नाराज नजर आई थी महुआ मोइत्रा. और भाजपा जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया गया है. आरोप ये भी था कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी से कथित रूप से पैसे लेकर संसद में पीएम मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछे थे. और जैसा हमने आपसे कहा कि उन्होंने अपना लॉगिन और पासवर्ड एक बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी के साथ शेयर किया था. तो ये वो आरोप था जिस पर 500 पेज की रिपोर्ट एथिक्स कमेटी की सदन में पेश की गई, और एक तरह से उसको पूरी तरह से वाजिब मानते हुए रिपोर्ट के जो सिफारिशें थी, उस सिफारिश में ये कहा गया था कि काफी गंभीर ये कदाचरण है, मिसकंडक्ट है, और इस मिसकंडक्ट को देखते हुए महुआ मोइत्रा की सदस्यता समाप्त किया जाना उचित होगा, जिसके आधार पर अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया. महुआ मोइत्रा इसको लेकर नाराज हैं और कांग्रेस सहित तमाम जो विपक्षी दल हैं, गैर भाजपाई दल हैं, जो संसद में भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत करते हैं संसद और सड़क पे, वो सारे सदस्य जो हैं इस मामले में मोइत्रा के फिलहाल साथ नजर आ रहे हैं. सोनिया गांधी भी सदन के बाहर ममता मोइत्रा के साथ चल रही हैं. तो ये एक तरह से इंडिया का जो गठबंधन है उसको एक मौका भी मिला है इसके जरिए कि वो साथ खड़ा होकर इसको एक मुद्दा लोकसभा चुनाव के पहले बनाए, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा ऋतु की राघव चड्ढा लंबे समय तक सस्पेंड रहे थे और इसी सत्र में एक प्रस्ताव लाकर उनकी सदस्यता का जो निलंबन था उसको समाप्त किया गया है. तो गैर भाजपाई जो दल हैं उनका ये भी आरोप है कि सदन में जो प्रतिद्वंदी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है. ये आरोप है विपक्ष का, जिसमें कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर शामिल है. मोइत्रा हमने सुना काफी फायरी नजर आई. उन्होंने कहा मेरी उम्र अभी 39 साल है, अगले 30 साल मुझे और राजनीति करनी है और मैं संसद से लेकर आगे इस तरह से वो अपनी लड़ाई आगे रखती भी नजर आएंगी. शरद जी, फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए. तो देखिए, जमकर हंगामा और उसके बाद सदस्यता रद्द हो गई है. ये फैसला लोकसभा की ओर से संसद में पेश किया गया है. और चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको लिए चलते हैं. राघवगढ़ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां बीजेपी नेता कार्यकर्ता साथ में मौजूद है और रोड शो में भी शामिल हुए हैं. सीधी लाइव तस्वीर. और ये संकल्प है कि सभी 29 लोकसभा की सीटें और 230 विधानसभाओं में केवल लोक